اچھا، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے، جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ۔ ہاں یار، اس پہ ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے بار بار؟ کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑیں۔ بس 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 جب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ۔ السلام علیکم دوستو 2022 میں عمران خان نے پاکستان کے علماء اور مشائخ سے ایک خطاب کیا تھا، اور عمران خان کا یہ خطاب پوری دنیا میں انتہائی وائرل ہوا تھا اور بہت مشہور بھی ہوا تھا۔ دوستو آج ہماری ریئیکشن ویڈیو اسی خطاب پر ہے جو عمران خان نے پاکستانی علماء اور مشائخ سے سن 2022 میں لاہور میں کیا تھا۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں عمران خان کا علماء اور مشائخ سے تاریخی خطاب۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، بالکل۔ میں نے جب ان ملکوں کو سٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں۔ صحیح، ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، بالکل ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے، بالکل، ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے۔ فلائی ریاست، میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں، اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلائی ریاست بنائی تھی۔ اس سے پہلے تو کوئی فلائی ریاست نہیں تھی، بادشاہ تھی، طاقتور کے پاس سب کچھ تھا، کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے، لاکھ سے زیادہ، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے بالکل، کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، بالکل، کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے وہاں۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، بالکل، وہاں رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے، اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا یہ ہے۔ تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا۔ بالکل، میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، بالکل، میں نے تو یہاں نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو خاندان ہیں، وہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا۔ یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹڈی کریں، جو محنت کرتا تھا، جو اچھے کام کرتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا۔ سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں، تو باہر سے آیا تھا، اس کو انہوں نے کیونکہ اس میں قابلیت تھی اس کو اوپر آنا پڑا، میریٹوکریسی تھی، یہ بات انصاف کا حصہ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میریٹوکریسی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہمیں سمجھ۔ آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں
जिस माशरे के अंदर इंसाफ और मेरिट होता है वो आगे निकल जाएगा उस माशरे से जिसमें मेरिट नहीं होता। बिल्कुल। 2 क्रिकेट टीम चले, True. मैंने क्रिकेट में 20 साल दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। एक क्रिकेट टीम मेरिट पे सेलेक्ट होती है, दूसरी सिफारिशों की होती है। जो मर्जी आप कर ले मेरिट वाली टीम जीत जाएगी। उसी तरह जिस मुल्क के मेरिट पे इदारे ऊपर आते हैं वो आगे निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो इंसाफ, बेशक। और फिर जो फलाई रियासत जिधर इंसानियत होती है, जिधर आप अपने कमजोर तबके की फिक्र करते हैं, जिधर आप जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरा जो लोग हैं बेचारे जो निचले तबका है, हमारी स्टेट की जिम्मेदारी उनको तालीम दें, उनके लिए इलाज करें, उनका सेहत का ध्यान रखें, उनकी नौकरियां करें। ये आज आप यूरोप चले जाएं, आप दुनिया में चले जाएं, हर जगह के ऊपर आपको यही नजर आएगा कि बेहतर उनका सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर है। फलाई रियासतें हैं वो अदालतों में जाओ, वहां अदालतों के अंदर कमजोर से कमजोर आदमी की अदालत के अंदर उनको इंसाफ मिलता है। बिल्कुल। तो मैं जब मदीना की रियासत की बात की, और पहले नहीं की, जब हमें हुकूमत मिली तब मैंने शुरू किया। तो ये मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि देखें, जो वो असूल थे जिसके ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत खड़ी की थी, क्यों अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी की सुन्नत पे चलो? क्यों उसका हुक्म है? हमारी बेहतरी के लिए। बिल्कुल। अल्लाह को तो बेनियाज है, बिल्कुल। अल्लाह को तो आप फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये हमारी बेहतरी के लिए कि अगर हम उनकी सुन्नत पे चलेंगे तो हमारी बेहतरी होगी। क्योंकि मदीना की रियासत में, ये भी हमारे लोगों को नहीं पता, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वो इनकलाब था। दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई। फतेह मक्का के टाइम में 622 और 632 के बीच में वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, बड़े बड़े आलम को हमने ऊपर बैठाया। हमने कहा करिकुलम डेवलप करो, स्कूल के बच्चों को सीरत नबी सिखाओ, 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर कोर्स स्पेशल डेवलप करो, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवाओ, बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स हो, पता चले हमारे नौजवानों को कि क्या इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया था, कैसे दुनिया मुसलमानों ने ट्रांसफॉर्म कर दी थी। 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी पावर थे। बिल्कुल। वो क्या चीज थी? क्यों ऊपर, फिर मुसलमान जब ऊपर भी गए फिर नीचे क्यों आए? इकबाल ने जो शिकवा और जवाब शिकवा लिखा, क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि हम ऊपर क्यों गए और फिर हमने क्या आया? वही मदीना के रियासत के उसूलों से पीछे हटे हम नीचे आ गए। और आज हम फिर कैसे अपने लोगों को ऊपर ला सकते हैं? इसलिए हमारी कोशिश थी कि ये अथॉरिटी बना के हम सारे मुल्क के अंदर लोगों को समझाएं, अपने यूथ को, नौजवानों को, फिर उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करें। अगर अब हम अपने बच्चों की तरबियत ना करें, और मैं समझता हूं कि तरबियत हो ही एक तरह सकती है कि हम सीरत नबी से बच्चों को पढ़ाएं, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करें। एक चीज है जिस तरह हम अपने बच्चों को सीरत नबी पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को। अपने बस बच्चों को अभी से उनकी तैयारी करवाएं अपनी हिफाजत करने के लिए। और मैं फिर से कहता हूं कि एक ही तरीका है हम अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, सीरत नबी से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखें, मुझे बार बार कहा जाता है कि आप बड़ी जिद्दी हैं, आप या आप ये नहीं करिए, जो लोगों ने करप्शन की हुई है बस इनको छोड़ दें, इनको माफ कर दें, इनके ऊपर ना बात करें, मुल्क का सोचें। मुझे बड़े बड़े, जो मैं हुकूमत में भी था तो मुझे प्रेशर पड़ता था कि जी NRO दे दो इनको। देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे जो
मोअज़्ज़ज़ मशाइख हैं, आपको लोगों की तरबियत करनी चाहिए। देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, बिल्कुल उनसे ज्यादा रहम करने वाला इंसान नहीं था, जिसको अल्लाह ने कहा कि सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, मुसलमान हो या नहीं हो। बेशक लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा रहमत करने वाले इंसान थे, रहम करने वाले इंसान थे, जब फतह मक्का हुई उन्होंने उन सारे कुफार को माफ कर दिया माफ कर दिया था। जिन्होंने मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया था, उनके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया था, उनको हिजरत करनी पड़ी, उनके जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जब फतह मक्का हुई तो उनको बदला तो लेना चाहिए था, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन ने सबको माफ कर दिया। बिल्कुल माफ कर दिया था। लेकिन जब उनके पास एक आदमी आया और कहा कि देखें जी ये कुरैश की लड़की ने चोरी की है, ये कुरैश की लड़की है, इसको माफ कर दें, तो तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जिधर चोरी, आप जिस दिन चोरी को माफ करना शुरू कर दें आप अपना माशरा तबाह कर देते हैं। उन्होंने जो उनकी हदीस है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर की जो हदीस है, अच्छा और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है इस पे। हाँ यार, इस पे डिबेट क्यों होती है बार बार? और जो नहीं मानता तो वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं सुन सुन मैं बस मैं सुन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बार बार के जी वो फलाना कायदियानी है, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है बिल्कुल है कुरान, उसमें ये चीज तो वाज़े है ना, इन्ना खातिमुन नबीयीन, बिल्कुल है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाज़े है ये। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है, हम ऐसे ही कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। अच्छा तो मैं ये अब आपको देखें, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये जो वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत अहम वक्त है। वक्त क्या है कि हमारे मुल्क के ऊपर बैरूनी साजिश करके इस मुल्क के वो नामवर डाकुओं को ऊपर बिठा दिया गया है जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मुल्क आते हैं, हुकूमत करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, वापस बाहर चले जाते हैं, फिर एनआरओ लेके फिर वापस आते हैं, फिर चोरी शुरू कर देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, पैसा मुल्क का बाहर ले जाते हैं। अब मुझे मैं सवाल ये पूछता हूं कि अगर एक बहसियत माशरा हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करते और इसका मुकाबला नहीं करते, हमारे और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या है? चोरी। आप ये ऐसे है कि आपके घर में कोई चोरी करे, चोरी करके चला जाए और थोड़ी देर बाद के जी मेरी चोरी माफ कर दो। कौन करेगा? आपका कोई घर लूट के जाए, माफ करेंगे उसको? कहेंगे पहले पैसे वापस करो। बिल्कुल। तो करप्शन तो मुल्क का पैसा चोरी है। वो जो सारे अवाम का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे, जो हर चीज अवाम की सहूलतों के लिए पैसा, वो चोरी करके बाहर ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं जी इसको माफ कर दो। और बड़े बड़े फ्लैट बना नहीं मानता तो कहते बड़ा जिद्दी है। भाई मेरा अपना पैसा होता शायद मैं माफी कर देता इन चोरों को, लेकिन अवाम का पैसा है, ये क्या गुर्बत है? लोग भूखे मर रहे हैं, 5 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनका पैसा चोरी करके तुम बाहर चले जाओ और फिर आगे कहोगे जी अब इनको एनआरओ दे दो। देखिए ये मुल्क का मसला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे कहा कि जो कौम छोटे चोरों को जेल में डाल देती है और बड़े डाकुओं को माफ कर देती है, एनआरओ कर देती है, नहीं पकड़ती, वो कौम तबाह हो जाती है। बेशक। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हमारा ये मसला है आज।
यहां कोई वसाइल की कमी नहीं है। ये अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत दी है, लेकिन ये मुल्क तब तक नहीं चलेगा जब तक हम मिलके अपने मुल्क को उन असूलों की तरफ लेके जाएं जिसके ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था मेरे नबी ने। बिल्कुल। तो मैं आप मशाइख, मोअज़्ज़ज़ मशाइख, मैं ये चाहता हूं कि आप ये मेरे साथ मिलके ये मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जहाद लड़ें। बस 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 कहते हैं। बस आज आप सबकी फिर जरूरत है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त किया जा रहा है, जो वारदात हुई है, कि बाहर से साजिश होती है, अमेरिकी हुक्म देता है कि हमारे एम्बेसडर को कि पाकिस्तान इमरान खान को हटा दो, साइफर, और उसके बाद यहाँ सारे मिलके डोनाल्ड लू, जो यहाँ के गद्दार हैं वो मिलके गवर्नमेंट गिरा देते हैं और फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं। और अगर हम इसको तस्लीम कर जाते हैं तो हमें ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मुस्तकबिल की कब्र खोद रहे हैं। इसलिए ये जो आने वाले दिन हैं, इसमें आप सबको अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी अपने मुल्क के लिए। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि लोगों को कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के तहत लोगों को आप जगाना शुरू करें। उनकी सब कुछ उन्होंने जो असूल बनाए हुए हैं कि मुल्क चलता कैसे है, अदल और इंसाफ क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, वो आप लोगों को आपको जरूर तबलीग करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये टाइम नहीं है। हम बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ ने जाके अमेरिका में माफिया मांगी है कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसा दे दो, नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सोचे इतनी मेहनत करके साजिश करके 5 महीने पहले गवर्नमेंट आती है, आज सारी अमेरिकनों को वहां जाके कह रहा है कि जी खुदा के वास्ते हमारी इमदाद कर दो, नहीं तो मुल्क का दिवालिया निकल गया, नहीं तो हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। सवाल तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आपके सारे पैसे अरबों डॉलर सारी दुनिया को पता बाहर पड़े। तो दोस्तों ये थे इमरान खान जो उलमा और मशाइख से तारीख़ी खिताब कर रहे थे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। दोस्तों एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।